وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا وهادينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين على لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. درود پر محمد اللهم صل على محمد محمد. برادران ایمانی، ماتمداران مظلوم کربلا، اعلان ہو رہا ہے بے شک اللہ کے نزدیک اگر دین ہے تو دین اسلام ہے. مسلسل گفتگو جاری ہے. اللہ نے کوئی کام انسان سے جبرن نہیں لیا. وہ غفور الرحیم پروردگار ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے. وہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا کوئی بندہ گمراہی کے راستے پہ چلے اور نتیجے میں مجھے اسے معذب کرنا پڑے. وہ رحمان الرحیم پروردگار انسان کی بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے، گناہوں کا اعتراف کر لے اور میں اس کی غلطیوں کو معاف کر دوں. اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں ایک کے بعد دیگرے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب قوت نظر عطا ہوئی اور اتنی طاقت عطا ہوئی، جناب ابراہیم کو ملکوت کے آسمانوں کی سیر کرائی جا رہی تھی، تو آپ سمجھیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے زمین کے گوشے میں دیکھا کر چکا ہوں شاید کبھی کہ لوگ گناہ میں مبتلا ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے خلیل تھے، اللہ نے انہیں نبی بنایا تھا، رسول بنایا تھا، ان کو 4-5 عہدے تھے، ان کو امام بنایا تھا. اور تڑپ اٹھے کہا کہ پالنے والے یہ تیرے گنہگار بندے ہیں اور تو دیکھ رہا ہے یہ گناہ میں مبتلا ہے. تو کہا ابراہیم پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا پالنے والے ان کو ختم کر دیں، ان کو موت دے دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے یہاں خلیل کا کہنا ہے تو ان کو ملک الموت بھیج کے روح قبض کروا لی. پھر جناب ابراہیم نے دیکھا مطلب عرض کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ 2-3 بار دیکھا انہوں نے، پھر وہی صدا بلند کی پالنے والے تو دیکھ رہا ہے. 3 بار اللہ سے فریاد کر چکے جناب ابراہیم کی سب گناہ کر رہے ہیں، تو دیکھ رہا ہے ان کی روح قبض کروا لے. تو اللہ نے کہا 4تھی بار دیکھا اور پھر کہا تو آواز ہے ابراہیم کیا تم میرا سب بندوں کو مار دو گے؟ میں ان کا پروردگار ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ گنہگار ہیں. اگر میں چاہتا تو ان کو پیدا ہی نہ کرتا، مگر یہ میرے گنہگار بندے، میرے خطا کار بندے ہیں. ان کی خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے میں موجود ہوں. اگر یہ مجھ سے ایک بار اپنی خطاؤں کا اعتراف کر لیں گے تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. جناب ابراہیم کو خاموش کر دیا پروردگار. جناب ابراہیم کو احساس ہوا کہ جو میں نے کہا مزاج پروردگار پہ وہ بات اچھی نہیں لگی. تو جناب ابراہیم کو ٹوک دیا کہ اللہ نے. اب سوچیے اس سے زیادہ رحمان الرحیم پروردگار کون ہوگا. اس کے بعد عزیزان گرامی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے. میں نے آپ کئی مجلسوں میں عرض کیا ہے کہ جب جناب موسیٰ قارون دھس رہا تھا، جناب موسیٰ سے کہا تو کہا اس کو دیا اپنا لابی ہے، لابی کی اولاد خاموش ہو جا. جناب موسیٰ کو ٹوک دیا کہ یہ کمی اس کی تھی کہ اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، وہ تمہیں سے فریاد کرتا رہا. تو آپ سمجھ لیجیے اب ہم قارون سے برے تو ہیں نہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو نہ معاف کرے. تو ظاہر سی بات ہے عزیزان گرامی. تو میں نے آپ کو جو عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت کا معاملہ یہ ہے کہ جو سارا کا سارا اللہ نے رحمت للعالمین کو جب دنیا میں مبعوث کیا تو انہیں ظاہر سی بات ہے کتاب و حکمت عطا کر کے بھیجا تھا کہ ہمیں، اور اعلان کیا وہ جو اسلام کی ایک تصویر بن گئی. کیونکہ آج کلمہ سید الشہداء اس اعتبار سے تھوڑی سی 2-4 جملے 10-15 منٹ گفتگو کر کے بات کو ختم کروں کہ جو ایک تصویر بنا دی گئی اسلام کی کہ اسلام تلوار کے دور پہ پھیلا اور اسلام میں سارا معاملات ایسے ہوا. اور جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. کس سے حکم ہو رہا ہے؟ اس رسول سے جو اخلاق کے عظیم درجوں کا فیض ہے. یہ اللہ کی راہ میں دعوت دو، مگر
हिकमत के साथ और अच्छी गुफ्तगू के साथ, नसीहत के साथ, यानी मीठी मीठी बातें करके, अच्छी अच्छी बातें करके बुलाओ। ये नहीं कि कोई अगर कोई सवाल पूछता कुरान कह रहा है, किसके लिए कह रहा है? रहमतुल लिल आलमीन से अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के उदो इला सबिल रब्बिक, अल्लाह के रास्ते की तरफ हिदायत दावत दो, बिल हिकमत वल मौजिज़तिल हसना, अच्छे मौजज़े के साथ और हिकमत के साथ, यानी हिकमत का इस्तेमाल करिए। यानी ये नहीं कि बाहर उस बेसर पैर की बातें, कायदे की लॉजिक वाली बात हो जो इंसान के दिमाग में बैठे और उसके बाद में बात करने का। अब रहमतुल लिल आलमीन जाहिर सी बात है, जिसके लिए कुफ्फार इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं। जब मीटिंग बैठी थी रसूल का कत्ल करने की, तो ये कहा था कि इनको अब शहर बदल कर दिया जाए। हम लोग इनसे कहते हैं भाई आप हमारा शहर छोड़ के चले जाइए मक्का। तो लोगों ने कहा कि अब्दुल्ला की यतीम को अगर तुम अपने शहर से निकाल दोगे तो ये जिस शहर में जाएंगे वहाँ अपने चाहने वाले पैदा कर लेंगे, क्योंकि इनकी ज़बान में अल्लाह इतनी कशिश, इतनी शीरीनी है, ये इतनी बात इतनी अच्छी तरीके से करते हैं कि लोग इनके गर्विदा हो जाएंगे, इनके इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे। इसलिए इनको बाहर निकालने का कोई मामला ठीक है नहीं, क्योंकि जिस मुसीबत से हम इनसे नजात चाहते हैं वो जहाँ जाएंगे वहाँ भी अपने हमनुमा पैदा कर लेंगे। इसलिए कत्ल ही कर देना इनका साथ आसान रास्ता है। तो इसका एतराफ़ तो काफिर जब कुफ्फार मक्का कर रहे थे कि रसूल जाहिर सी बात है अच्छी नसीहत कर रहे थे, तो अब नतीजा क्या हुआ कि हर आदमी को अपनी हद के अंदर रह के कि जो पूछा जाए तो उसका जवाब ढंग से देना चाहिए। यह नहीं कि कुरान कह रहा है कि उसको काट लो दौड़ के कि तुमने ये क्यों कह दिया, तुमने ये क्यों पूछ लिया। और अज़ीज़ान गिरामी कुछ चीज़ें हैं जो इंसान के हिसाब होता है कि कोई चीज़ इंसान के इंसान है, बहुत सी अभी कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने भाई पल समझ में नहीं आती, तो जाए तो अपने बड़े से पूछते हैं, अपने जो हमसे ज़्यादा बेहतर है, हमसे ज़्यादा साहिब इल्म, उससे पूछते हैं। जब जनाब मूसा सैर कर रहे थे, फिर आगे और जनाब इब्राहिम की, जनाब इब्राहिम सैर कर रहे थे, 4-5 ओहदों के फायद हैं, अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं, इमाम हैं, अल्लाह के खलील हैं, सारे मनसब जनाब इब्राहिम के पास हैं। मगर जब निकल रहे थे तो देखा एक मुर्दा पड़ा हुआ है, आधा हिस्सा दरिया के अंदर है, आधा खुशकी में है। जो दरिया के अंदर है उसको दरिया के जल मछली वगैरह जो इसे खाती हैं वो खा रही हैं, जो खुशकी में है वो ऊपर से परिंदे आ रहे हैं खा रहे हैं। अब जनाब इब्राहिम को ख्याल है कि जाहिर सी बात है आधा तो खुशकी में आधा पानी में, अब ये खा रहे हैं, अल्लाह कैसे मुर्दे को जिंदा करेगा। तो कहा पालने वाले तू कैसे मुर्दों को जिंदा करेगा। तो हुक्म परवरदिगार आलम हो, क्या तुम ईमान नहीं लाए? इससे हुक्म हो रहा है जो 5 ओहदों पे फायद नबी, तुम ईमान नहीं लाए। तो कहा नहीं पालने वाले, मुझे यकीन ईमान तो तेरे ऊपर है कि तुम मुर्दे को जिंदा करे, जब तूने कहा है तो करेगा, मगर इत्मीनान कल्ब के लिए देखना चाहता हूँ कि कैसे जिंदा करेगा। दूर पड़े वो कोई हदीस है न रवायत है, ये कुरान है। तत्मइन्ना कल्बी, मैं इत्मीनान कल्ब के लिए तुमसे पूछ रहा हूँ कि कैसे जिंदा करेगा मुर्दों को। अब वो रवायत है कि इमाम ने फरमाया कि जनाब इब्राहिम से अल्लाह ने वादा किया था, तो जनाब इब्राहिम ने उस बुनियाद पे इस बात को रखा था कि मैं अपनी आंखों से देखूं। तो अब अज़ीज़ान गिरामी, इब्राहिम जैसा पैगंबर अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रहा है कि मुर्दे को देख कि पालने वाले तुम मुर्दे को किस तरह जिंदा करेगा। अब अल्लाह की मार्फत हमें ज़्यादा है या इब्राहिम को ज़्यादा थी, जिनके इस्लाम मुसलमान होने की दुआ कर रहे हैं जनाब इब्राहिम। हम मुसलमान होने पे अकड़े जा रहे हैं, जनाब इब्राहिम दुआ कर रहे हैं कि अपना मुसलमान बंदा बना ले मुझे। अब इस्लामियत इतनी आसान चीज़ नहीं है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह हमने कह लिया वो मुसलमान हो गए। अज़ीज़ान गिरामी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने के साथ कुछ शर्तें भी हैं, और वो शर्तें जो कल मजलिस में अर्ज़ करना चाह रहा था नहीं अर्ज़ किया। इमाम ने फरमाया अना मिन शुरूत हम अहले बैत, उसकी शर्त है अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के नजात पाना है तो हम आले मोहम्मद की इताअत करनी पड़ेगी। अगर हमारी इताअत न करोगे तो न ला इलाहा इल्लल्लाह तुमको कोई फ़ायदा पहुँचाएगा, न मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई फ़ायदा पहुँचाएगा। तो ये अज़ीज़ान गिरामी जनाब इब्राहिम कह रहे हैं। अच्छा, अब हम अगर किसी चीज़ में कह दें
कि भाई जाहिर सी बात है हमारी एक सोच है, हमारी एक फिक्र है, हमारी एक पहुंच है, हम अपनी नॉलेज में इजाफा करने के लिए कहते हैं, तो भी मालूम नहीं कितने मुफ्ती इसी इलाके में पैदा हो जाएंगे कुफ्र का फतवा देने के लिए, है नहीं। अगर मैं पूछ लूँ कि यार बताइए कि कोई लाजे किसी भी मसले पे शरीयत के या किसी मोहब्बत के, अगर मैं किसी सवाल पूछूं तो सवाल का मतलब ये है कि हमें जवाब मिलना चाहिए ना कि हम पे कुफ्र का फतवा लगना चाहिए। इस्लाम जाहिर सी बात है, तो अब सवाल पूछने की कोई भी मसला हो, किसी भी मसले के ऊपर आप जा सकते हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगर अली की विलायत को आपको दुनिया को साबित करना है तो उसके फायदे तो बताने ही पड़ेंगे, उसको साबित करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि सब हर आदमी मान लेगा। अगर सब मान ही लेते तो नौबत ये थोड़ी होती। अब मनवाने के लिए हिदायत, हम बात को अपनी कहना हमारा काम है, मानना या ना मानना दुनिया का काम है, मगर ये दामन पकड़ के कल ये न हो कि हम ये जानते नहीं थे। तो इसलिए विलायत का जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो हमको अपने घर को दुरुस्त करना पड़ेगा, माशरे को। रसूल अल्लाह को भी हुक्म हुआ है कि पहले अपने अकरबा को बुलाओ, उसके बाद में पूरी बिरादरी में जब तुम अपने करामतदारों को दावत दे दोगे उसके बाद दूसरों को दावत देना। तो पहली तो दावत जुलसीरा ही हुई है कि पहले अपने अकरबा को बुलाया, उसके बाद उसमें बात को रखा, फिर मक्के में ऐलान हुआ। तो अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले हम अपने बच्चों को तो इस लायक बना ले कि वो किसी मामले में न पिछड़े और न टूटे और न बहके। हम अपने बच्चों को जब इतना मजबूत बना ले तब आगे का कदम बढ़ाए। एक दूर पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, क्योंकि इस्लाम वाह का मजहब नहीं है, ये किसी खास नस्ल में किसी खास घराने में पैदा हो जाने का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम किरदार का मजहब है। जो साहिब किरदार होगा वही सबसे ज्यादा बुलंद होगा, वो किस कौम कबीले से हो इसका कोई मामला नहीं है। मैंने आपके खिदमत में अब कल वाली बात तो आज अर्ज नहीं कर सकता, बहरहाल अब वक्त भी काफ़ी हो चुका है, इसके बाद मजलिस भी है और मौसम भी साजगार नहीं है। इसलिए अब वो सारी चीज़ें जो इस्लाम अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन दे के आए थे, तो जाहिर सी बात है उसके लिए कोई मजबूत आदमी होना चाहिए। पूरी दुनिया के प्रोग्राम होते हैं, हत्ता कि गैर कौम को छोड़ दीजिए। और जो मैंने आपके खिदमत में अर्ज़ किया, तो ये सारा मामला जो होता है, मैंने एक दिन अर्ज़ किया था एक आबिद का वाक़या, अच्छू जिया भाई तो थे नहीं, अच्छू भाई थे, तो आबिद को उसने जो बहकाया शैतान ने, तो कोई दूसरा तरीका अख्तियार नहीं किया बल्कि इबादत ही का तरीका अख्तियार किया उसने। इबादत के ज़रिए उसको धोखा दे दिया। अब वो और बात है कि उस फाहिशा औरत ने उसके अमाल को, उसके बहके हुए कदम को वापस भेज दिया। अल्लाह ने उसकी जजा ये दी कि उसे जन्नत दे दी, उसके नतीजे में कि उसने एक बेगुनाह को गुनाह करने से रोक दिया। तो उसके जजा में जो जिंदगी भर गुनाह में मुब्तला रही औरत, उसे जन्नत भेज दिया अल्लाह ने। तो जाहिर सी बात है। और हम अब ये सारी बहसें होती हैं, तो जितनी नमाज के बारे में बातें हुई हैं, जितनी हदीसें हैं वो आयतें हैं, न वो मेरे ऊपर नाजिल हुई हैं और न मौलाना अहमद अली के ऊपर नाजिल हुई हैं। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज अकेली तमाम फहशियात और मुनकरात को बचाती है। अस्सलात अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। या जो हदीसें आई हैं कि अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। रुद्दत रुद्दा माँ से वाह, कुबलत कुबला माँ से वाह। अगर नमाज कबूल हो गई तो सारे अमाल कबूल हो जाएंगे, अगर नमाज रद्द कर दी गई तो सारे अमाल रद्द कर दिए जाएंगे। अब ये अगर आप बयान करने लगिए तो मालूम नहीं कितने लोगों की धड़कनें घटने पड़ने लगती हैं कि मामला होता है कि भी नमाज की बात। अब अज़ीज़ान गिरामी, आप नमाज को अहले बैत से जुदा करके देख सकते हैं, क्योंकि रसूल अल्लाह ने जो दो मजलिसों याद कर रहा चुबाई की दो चीज़ें पकड़ाई हैं, एक हाथ में दामन अहले बैत है, एक में दामन कुरान है। तो जाहिर सी बात है कुरान में जो ना समझ में आएंगे अहले बैत तो कुरान समझाएगा, जो कुरान समझ में ना आएगा तो अहले बैत समझाएंगे। यानी कुरान नातिक की तफसीर कुरान सामित करेगा और कुरान नातिक की वजाहत कुरान सामित करेगा। और इसमें जो अमल है
वो अंजाम देना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अब नमाज पढ़ना ये कोई हम खुदा के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह ने मुझे जो इतनी नेमतें दी हैं हम उसका शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकते। एक दिन अर्ज किया था कि एक सांस का भी हम शुक्रिया नहीं देते। जनाब मूसा इस बात से आजिज रहे तो अल्लाह ने कहा कि यही तुम्हारा आजिज होना तुम्हारा शुक्रिया है। और रही गई बात, अच्छा ये सारी चीजें हैं, जन्म अमीरुल मोमिनीन के सिफीन में तीर निकाला गया, सुनते हैं हम कितना खुश हो जाते हैं कि मौला अली जंग के हालत में नमाज पढ़ रहे थे और उनका तीर निकाल लिया गया और पता नहीं चला। हमको एक मच्छर काट देता है पता चल जाता है। तो हम उनके जब चाहने वाले, अगर हमको नमाज की जरूरत नहीं है तो अली को नमाज की जरूरत कहाँ थी? एक जरूरत पड़ी है मोहम्मद नमाज कदा नहीं हुई। अगर वक्त नमाज जाने लगा तो सूरज को वापस आना पड़ा अली की नमाज को अदा कराने के लिए। और हम उनकी इताअत करने के बाद हम चाहते हैं कि हम नमाज पढ़े न पढ़े अहले बैत बख्शवा देंगे। अब तो अहले बैठी से आके पूछने की क्या होगा? कहा कि मैं उसकी सिफारिश हरगिज न करूंगा। रोज़ा महशर इमाम ने फरमाया जो नमाज को हल्का समझे, जो नमाज को हल्का समझे उसकी तो सिफारिश करे नहीं, तो अहले बैत बेनमाजी की सिफारिश कहाँ से करेंगे? खूब पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। भरोसा हमारा अपनी नमाज के ऊपर है अच्छू भाई कि हम नमाजी बहुत बड़े हैं, हमारी नमाज हमको बख्शवाएगी या रोजा हमको ले जाएगा जन्नत में। सहारा एक है, आमाल हम कर रहे हैं, कबूल करने वाला वो परवरदिगार है। और जो कमी रहेगी तो हमारे लिए सहारा अहले बैत है। अब जाहिर सी बात है, सुकून से हम कहें कि ये काम करवाना है, तुम्हारी ये पहुंच और पकड़ है, और इन्होंने ये मना कर दिया कि अगर ये मौलाना ये काम करोगे तो हम तुम्हारी कोई सिफारिश न करेंगे। तो अब बताइए, सारा भरोसा तो इनके ऊपर था और यही मना किए दे रहे हैं कि हम ये करोगे तो हम ये न करेंगे। तो अब अहले रस्म इमाम तो फरमा रहे हैं अगर तुम नमाज को हल्का से भी समझ लिया तो हम उसकी सिफारिश न करेंगे रोज़ महशर। तो जो बेनमाजी होगा उसकी सिफारिश कौन करेगा? जाहिर सीधी सी अक्ल की बात है, कोई बहुत बड़ी लॉजिक वाली चीज़ है नहीं। और रह गई नमाज हमारी, अब आप न पढ़ें तो उसके लिए तो 20 बहाने हैं, मगर नतीजा कुछ हासिल होने वाला है नहीं। जब जाके फरिश्ता आ जाएगा तो जाहिर सी बात है, आप हम ये सोच लें कि आज हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, कल पढ़ेंगे, तो कल का मुझे यकीन है कि हम कल तक जिंदा रह पाएंगे। अगर हमको अपनी एक सांस का यकीन हो तो हम कल के लिए सहारा देखें कि कल हम नमाज पढ़ेंगे। जब हमको अपनी एक सांस का भी यकीन नहीं है तो कल के ऊपर मामला छोड़े क्यों? जो आज गुजर गया है वो तो गुजर गया, जो है उसको गनीमत समझिए, कार खैर जितना हो सकता है कर लीजिए। कम से कम जो अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगा दी उतना तो हम कर ही लें। और कल किसी ने देखा ही नहीं है कि कल क्या होगा। तो अल्लाह ने ग्रामी इसलिए करबला के मैदान में नमाज की यह हालत थी कि मजलूम करबला ने एक शब की मोहलत ली थी कि अपने परवरदिगार की इबादत कर लो। इस हालात में जब 3 दिन के भूखे प्यासे थे मजलूम करबला, 3 दिन तो मशहूर है, 3 दिन के लिए तो बच्चे थे। अब मजलूम करबला कितना भूख प्यासे थे ये तो अली अकबर ने जब ज़बान जहन में दी है तब पता चला है कि बाबा कितना प्यासा था जब ज़बान खींची थी। और उसके बाद में सजदे में जाके मजलूम करबला ने ज़ोहर की नमाज पढ़ी है। तो मैदान करबला के अंदर मजलूम करबला की जो ज़ोहर की नमाज हुई है वो किस हालत में हुई है कि 2 सिपाही आगे खड़े थे और मजलूम करबला के जो साथी बच चुके थे उस वक्त तक वो सब में थे। वो मेरा इमाम नमाज ज़ोहर पढ़ा रहा था। अब अज़ीज़ान गिरामी इतना होने के बाद अगर हम हुसैन का इतना भी हक अदा कर पाएँ तो फिर मामला आप समझ सकते हैं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि कोई भी दलील और कोई भी बुरहान नमाज को हल्का नहीं कर सकती है। क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन को ये जो पैगाम दिया गया है ये पैगाम हम तक पहुँचाया रहमतुल लिल आलमीन ने इसी दीन इस्लाम की बका के लिए। और यजीद करता क्या था भाई? तारिकुस सलात ही तो था यजीद। अगर हम यजीद तारिकुस सलात तो हम नमाज पढ़ने के बाद कहें हुसैनी है तो जाहिर सी बात है इमाम हुसैन को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारा ऐसा चाहने वाला है।
तो हम किस मुंह से जाएंगे कि मौला जिस मकसद के लिए आपने अपने इस्लाम को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसी इस्लाम को हम पामाल करते रहो, हम आपके चाहने वाले हैं। उस मजलूम करबला का आज चहलुम है जिसने अपना सब कुछ बनामे इस्लाम कुर्बान कर दिया, इस्लाम के नाम नाना के मिशन को बचाने के लिए कि अल्लाह का नाम बाकी रह जाए, अल्लाह का पैगाम बाकी रह जाए। मोहम्मद जो दीन मेरा नाना जद मेरा जो दीन लाए वो दीन इस्लाम क़यामत तक के लिए बाकी रह जाए। अज़ीज़ान गिरामी, मज़लूम करबला की शहादत का असर यह हुआ कि अब न जुमे की नमाज बुझ को पढ़ी जा सकती है और न बेनमाज कोई शराबी और बदकिरदार इंसान मस्जिद में दाखिल हो सकता है, ना कि पेश नमाज बन जाए। मगर शहादत मज़लूम करबला से थोड़ा पहले रहमतुल लिल आलमीन की वफ़ात से एक 30 साल के भीतर 20 साल 25 साल के ये हो गया कि शराबी इमाम जमात बन गया, 2 से 4 रकत नमाज पढ़ाती। मगर बाद शहादत हुसैन 61 हिजरी के बाद से ये जुर्रत किसी में हुई कि मज़लूम करबला की शहादत का असर इतना हो गया कि कोई फासिक कोई शराबी पेश नमाज तो छोड़ दिया, मस्जिद में दाखिल न हो सका, वरना इस्लाम कहाँ पहुँच जाता है। जाने का आप समझ लीजिए उस मज़लूम करबला का। तो अहले बैत असीर होकर 10 मुहर्रम 11 मुहर्रम को करबला से चले थे। पहले कूफे आए, 1 हफ्ते कूफे में कैद रहे। कूफे की कैद से शाम के लिए इनको रवाना कर दिया गया। सैयद सज्जाद लुटा हुआ काफिला लिए हुए शाम पहुंच गए। आप जिससे अपने होश संभाला मसाइब सुनते हैं। मसाइब अज़ीज़ान गिरामी वो लफ्ज़ें बनी ही नहीं है जो किसी मुसीबत को बयान कर सके। ये तो हमारी मजबूरी है कि इन लफ्ज़ों को बयान करते हैं, वरना मुसीबत को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, लफ्ज़ों में कोई मुसीबत बयान नहीं होती है। ये तो जुमले की मजबूरी है कि हम मसाइब में जुमले पढ़ते हैं, वरना अगर इंसान का एहसास बेदार हो जाए तो रोने के लिए नाम हुसैन काफ़ी है। कभी गौर करिए अज़ीज़ान गिरामी, खुदा हुसैन की यतीम बच्ची के सदक़े में सबकी बच्चियों और बच्चों को सलामत रखे। जनाब रबाब और जनाब सानिया ज़हरा देख रही हैं, भाई 22 साल 23 साल का जवान भाई देख रहा है और बहन मामूली सी चीज पानी के लिए घुट घुट के कैद खाने में मर रही है। मगर न रबाब कुछ कर सकी, न ज़ैनब कुछ कर सकी, न सैयद सज्जाद का इंतजाम कर सके, और बहन प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गई और वसीयत करके मरी कि मेरे भैया जब मुझे नफ्स करना तो नर्म ज़मीन देख के नफ्स करना। आज वो कैदी हर आदमी, कोई ऐसा नहीं कि जिसके यहाँ कोई मैयत न हुई हो। खुदा को अल्लाह मजलूम करबला के जवानों को जवान के सदक़े में, बुजुर्गों को हबीब इब्न मज़ाहिब के सदक़े में सलामत रखे। जनाब सानिया ज़हरा वो वक्त आ गया, रवायत ने लिखा कि शाम के अंदर एक हैजानी कैफियत पैदा हो गई, लोगों का आना जाना कम हो गया। ये वही शाम है जब ज़ैनब दाखिल होती तो कोई पत्थर मार रहा था, कोई आग फेंक रहा था, कोई खजूरें सदके की फेंक रहा था। उस शाम के अंदर ज़दारो आज वो वक्त आ गया कि यजीद ने सैयद सज्जाद को बुलवाया। कब? आप समझ लीजिए 10 सफर को जनाब सकीना की शहादत वाक़ई हुई है शाम में, और 20 सफर को लुटा हुआ काफिला सैयद खाने शाम से रिहा होकर करबला पहुंच गया है। अब आप अंदाजा लगा, उसमें 5 दिन तक की रवायत 7 दिन तक की रवायतें हैं जो शाम में मजलूम करबला का सानिया ज़हरा गम मनाती रही। अब ये 2 ही 3 दिन के अंदर ऐसी हैजानी कैफियत शाम में पैदा हो गई कि यजीद को अपने तख्ते को पलटने का डर हो गया। उसने घबरा के सैयद सज्जाद को बुलवा लिया। ये सैयद सज्जाद
आओ बुलवाया, कहा कि ऐसा ये तो आज जब चलने लगे तो सानी रवायतों ने लिखा है कि जब किसी मुल्क का कोई सफीर या अमीर आता था तो सैयद सज्जाद को यजीद बुला के और दिखाता था कि देख लो ये आले रसूल है। ये भी जो भी कर सकता था नौज बिल्ला का, जो भी अपने एतबार से आले रसूल को जो बाप दादा की रविश थी कर सकता था वो करता था। आज जब सैयद सज्जाद को बुलवाया तो सानिया ज़हरा तड़प के खड़ी हो गई। कहा मेरे लाल सैयद सज्जाद मैं तुझे तनहा न जाने दूंगी। इमाम ने सर को झुकाया, कहा कि अम्मा जाने दीजिए, अभी 35 बरस अपने बाबा का गिरिया करना है, यजीद मेरा कुछ न बिगाड़ेगा। अब सैयद सज्जाद आए तो आज नक्शा बदला हुआ है। जनाब सैयद सज्जाद जब दरबार में दाखिल हुए, आज यजीद ने कहा आओ सैयद सज्जाद बैठ जाओ। सैयद सज्जाद ने बैठ से इनकार कर दिया। कहो यजीद ये वही जगह है जहाँ मेरे बाबा का सर तख्त तला में जमीन में रखा था, मैं कुर्सी पे कैसे बैठ सकता हूँ। सैयद सज्जाद को अपना वो दिन याद आ रहा था कि यही वो दरबार था जिसकी आईना बंदी थी, मेरी माँ बहने खुफिया रस्म बरता करी थी। कहा सैयद सज्जाद अब्दुल लोहार को बुलाया गया, कहा कि सज्जिया बेड़िया काट दी जाए। हथकड़िया बेड़िया उतारी गई तो नतीजा ये था कि हथकड़ियों बेड़ियों की वजह से सैयद सज्जाद के हाथों पैरों का गोश्त खत्म हो चुका था। गले में खार तो था, जब उतर न सका तो हद्दाद ने लोग किसी आले से उसको काटना शुरू किया। काटने के बाद जब उसको जुदा किया तो चीख मार के रोया। जब लोगों ने सबक पूछा कब ये ताज्जुब है इस जवान पे कि ये खारदार तोक पहन के 1 साल तक जिंदा कैसे रह गया। हजारों जब तोक जंजीर उतार दी गई, लंगर खोल दिया गया, बेड़िया जुदा हो गई। अब सैयद सज्जाद से यजीद ने कहा है सैयद सज्जाद मैंने तुम्हें रिहा कर दिया है, दिल चाहे यहाँ रहो, दिल चाहे मदीने चले जाओ, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे चले जाओ। मगलूब सैयद सज्जाद ने सर को झुकाया, कहा है यजीद इस अम्र में मेरी फूफी खुद मुख्तार है, मैं पहले उनसे मशवरा ले लूँ कि वो उनकी क्या मर्जी है, वो कहाँ जाना चाहेंगी। जनाब सैयद का ठीक है, जैसा हो मुझे इत्तला कर देना। जनाब सैयद सज्जाद वहाँ से जब वापस पलटे तो फूफी तरह जिंदान पे पसेदार खड़ी हुई अपने भतीजे का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सैयद सज्जाद दाखिल हुए लगा या मेरे सैयद लाल सैयद सज्जाद ये हथकड़िया बेड़िया क्या हुई, गले का खार तो क्या हुआ। सैयद सज्जाद ने सर को झुकाया। दुनिया में आजादारों आज कई करोड़ लोग मजलूम करबला का चेहरा बनाने के लिए करबला पहुंच चुके हैं। अल्लाह उनकी हिफाजत करे, खैरिया से तमाम ज़ायरीन अपने घरों को आप आ जाए। मगर कल करबला में हुसैन का चेहरा बनाने वाला कोई न था। अल्लाह ने जो वादा किया था पूरी दुनिया देख रही है कि दुनिया के कोने कोने से ज़ायरीन उस गरीब इमाम का चेहरा बनाने के लिए करबला पहुंच चुके हैं, जहाँ कल हुसैन भूखे शहीद हुए, हुसैन के चाहने वाले भूखे प्यासे शहीद हुए। आज दुनिया में किसी भी काम का कोई प्रोग्राम होता है तो चीजों के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, मगर करोड़ों ज़ायरीन पहुंचने के बाद कोई ज़ायरीन ये न बताएगा कि हम भूखे रहे या प्यासे रहे या मेरा कोई पैसा खर्च हो गया। अल्लाह ने जो वादा किया था, अल्लाह के अपने बंदे से वो वादा पूरा हो रहा है। जितने ज़ायरीन जा रहे हैं वो किसी और के नहीं बल्कि खुदा के मेहमान बन के जा रहे हैं। अज़ादारों सैयद सज्जाद ने कहा अम्मा, सर को झुका लिया, कहा मेरा लाल हथकड़िया बेड़िया क्या हुई। सैयद सज्जाद ने सर को झुकाया, कहा फूफी अम्मा यजीद ने मुझे आजाद कर दिया। कहा चाहे यहाँ रहो चाहे मदीने चले जाओ, जैसा हो। तो कहा फिर मेरे लाल क्या तुमने क्या कहा। कहा फूफी अम्मा आपके बगैर मशवरे के क्या कह देता, आप बताइए कि आपकी क्या मर्जी है। कहा मेरे लाल सैयद सज्जाद
जब से मेरा भैया शहीद हुआ मैं अपने भैया का मातम न कर सकी, दिल भर के रो न सकी। यजीद से कह दो चंद हुजरे खाली करा दे, घर खाली करा दे और हमारा लूटा हुआ सामान वापस कर दे, और पहले हम अपने भैया का मातम कर लेंगे, अपने चाहने वालों को दिल भर के रो लेंगे, फिर फैसला करेंगे कि हमें कहाँ जाना है। ये पहली फतह का हुसैन का ऐलान था। एक दरबार यजीद में आते ही सैयद सज्जाद ने किया था। जाते ही यजीदियत की चूल्हे जनाब सानिया ज़हरा हिला रही है कि देख यजीद, जिसको तूने जलील करना चाहा उसकी बहन तेरे घर में अपने मजलूम भाई का मातम करके दुनिया को पैगाम दे रही है कि मेरा भैया जीत गया, नस्ल अबू सुफियान हार गई। अज़ादारों, हुसैन सैयद सज्जाद आखिरी रवायत खत्म दुआ। अज़ादारों, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि सैयद सज्जाद के रबाब के जनाब सानिया ज़हरा के सामने 4 साल की बच्ची प्यास की ताब जला के दम तोड़ गई। जिंदाने शाम में सकीना की कब्र बन गई। अज़ादारों, इधर सैयद सज्जाद ने जाके यजीद से कहा कि मेरी फूफी अम्मा ने कहा है कि मेरा लुटा हुआ सामान वापस कर दे और एक घर खाली करा दे जिसमें हम अपने बाबा का, उनके असहाब का मातम कर रहे, अपने अकरबा का, फिर हम फैसला करेंगे कहाँ जाना है। कहा ठीक है। मकान खाली करा दिया गया। इधर कैद खाने का दरबान कैद खाने को खोलने के लिए चला। इंसाफ से बताइए अज़ादारों, फिर भी कोई किताब में नहीं लिखा। इतनी चीज यह है कि जब इंसान कहीं ज्यादा दिन से कैद होता है तो इंसान को इंतजार होता है जब हुक्म रिहाई मिल जाए कि अब मुझे आज रिहा हो जाना है, तो दिल की अजीब सी कैफियत होती है कि आज हम यहाँ से आजाद होकर इस कैद खाने से निकल जाएंगे। मगर यही कुछ कैफियत कैद खाने जिंदान के कैदियों की भी थी। बड़ी हसरत से जिंदान के दर को देख रहे थे, मगर एक बच्ची वो थी जो रोज अपने फूफी से पूछती थी, ऐ फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। फूफी कहती थी मेरे लाल ये परिंदे अपने घर को जा रहे हैं, आशियानों को जा रहे हैं। बच्ची पलट के कहती थी फूफी अम्मा मुझे अपने वतन मदीने जाना कब नसीब होगा। वो बच्ची जिंदाने शाम में मौत की आगोश में सो गई। सारे कैदी टकटकी बांधे हुए तेरे जिंदान को देख रहे हैं। जैसे ही जिंदान बांध ने जिंदान के कुफ्र को खोला, दरवाजा खुला। अब सारे कैदी कैद खाने के दरवाजे से मुड़े, एक कैद खाने के गोशे में पहुंचे। नन्ही सी कब्र में रबाब ने अपने को गिरा दिया। सानिया ज़हरा का लेटा थाम के बैठ गए। सैयद सज्जाद सरोसीना पीट रहे थे, ऐ मेरी लाल सैयद सकीना, ऐ मेरी बहन सकीना, अरे हम कैद से आजाद कर दिए गए। ऐ बहन, ऐ बेटी, क्या बाबा से मिलने चचा से मिलने करबला न चलोगी? और जब नहीं आवाज आई हो ऐ फूफी अम्मा करबला मदीने जाना मुबारक हो। अब आपकी बच्ची हमेशा के लिए जिंदाने शाम में हसीर हो गई। मौत ने मोहलत न दी कि वह बेटी बाप की कब्र पे जा सके। अब सकीना हमेशा के लिए जिंदाने शाम में आराम करेगी। वो गुर्बत